Good morning, all the students of the BSc second year classes. Because now today is the new day of along with the new topic of the BSc second year classes. So that today will start a new topic which related to the physiology, and in the physiology the lot of the system which are integrated, perform the lot of the functions, and to complete, to given a platform for the survival of the animals. So that today we'll start to our new topic, new day, the new topic to the circulation. Circulation is now studied in the circulatory system. So one of the system in the physiology of the human beings or the animals, particularly your paper of the BSc secondary is the animal physiology and the biochemistry. Now will restart to the physiology. In the previous lectures, I was discussed about to the successive lectures which are confined, which are related to the digestion and the respiration. Now today I will start now to the topic of the circulation, which studied in the circulatory system. So that we first of all understand about what is the circulation. What about to the circulation? What is the circulation? Circulation is the different scenario into the different kinds of the system, and particularly into the biology or the living things which are related to the circulation of the other any kinds of the fluids which are found into the tissues, or the particular system which are a confined system for that to the of the body. The medium, the fluid, particularly which I can say that about to the blood which are moving from to the a particular system, and that system is circulatory system. Blood is related. Now go now to the circulation. What is the circulation? Particularly आज मैं आपको पुनः फिर से जो प्रीवियस में जब हमने लेक्चर्स की शुरुआत किया था तो वहाँ पे डाइजेशन और सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई सारी फिजियोलॉजी, सारी मैकेनिज्म और उससे संबंधित ग्लैंड्स की चर्चा की थी। उसी प्रकार से आज मैं एक बार फिर से आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर के फिजियोलॉजी से जुड़ी एक विशेष प्रकार के सिस्टम फिर से पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, या ये कह सकते हैं कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे जिसमें सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, हार्ट, कैपिलरीज और उसके मैकेनिज्म को यहाँ पे देखेंगे, और उसके आधार पे जानेंगे कि किस प्रकार से सर्कुलेशन आप हमारी बॉडी में परफॉर्म किया जाता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम? द वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम which consists of the heart, vessels, along with the capillaries, arteries and the veins, and the fluids. So that in the circulatory system we are going now to the first of all, what is the circulation? What about to the circulation? In the general, we can say that about to the circulation process, the circulation, यहाँ पर सर्कुलेशन को पढ़ना है और वो जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि थोड़ा सा कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसमें जो हार्ट होता है, ब्लड होता है और उससे रिलेटेड कैपिलरीज होती हैं, जो कि आर्टरीज और वेन्स, जो वेसल्स होती हैं, वो तो ये तीनों चीज़ें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती हैं और
पर्टिकुलरली हम इन तीनों चीज़ों को विशेषकर पढ़ते हैं। स्पेशली वी आर स्टडी इन द सर्कुलेटरी सिस्टम टू द हार्ट, blood and their vessels, that is the capillaries and the arteries and the veins। तो इसके अंतर्गत ब्लड का फ्लो होगा। ब्लड क्या है? फ्लूइड है। ब्लड एक मीडियम है जो कि पूरे हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो ब्लड की बात आती है, तो ब्लड हमारे बॉडी में एक ऐसा मीडियम है जो कि सारे वेस्ट मटेरियल को, सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल को, सारे एलिमेंट्स को, एटम्स को, और इवन जो भी चीज़ें जब भी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक ये पहुंचाती रहती है और लेके जाती है। तो इस प्रकार से ब्लड की भूमिका हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मीडियम है, वो कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके अंतर्गत वो सारी चीज़ों को लेके जाके। तो पर्टिकुलरली अगर हम मेंशन करेंगे तो देयर आर द टू थिंग्स अबाउट टू द वी आर रिप्रेजेंटेड हियर टू द न्यूट्रिएंट मटेरियल एंड द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल which are go pass from to the body, and to the nutrient material which are goes in the tissues after the digestion process, in the digestive nutrient material which goes now into the tissues, and where are the chemical reactions or the metabolism is takes place due to the presence of the oxygen. Oxygen is carried about by the hemoglobin. Hemoglobin is the part of the blood, and that is carried to the oxygen from the environment through the process of the inspiration, which is the mechanical process, is one of the process of the breathing, that is the breathing in which to the inspiration and the expiration mechanism which takes place for the excretion, for the expiration and the inspiration of the CO2 and O2 respectively. So that this is the spontaneous process for that to the body physiology of the respiration. So here now go to the which kinds of the procedure, which are kinds of the system which are involved to the process of the circulation. What is the things is the circulation. Circulation is the system. Circulation is the process, and these are the processes which are going through the systems in the circulatory system, and that circulatory system which are consist of the heart, blood and their vessels, arteries and the veins। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर जो सर्कुलेशन जो प्रोसेस होता है उसको समझने के लिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम जानना पड़ेगा, और जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो निर्माण है वो कुछ चीज़ों से मिलकर बना है, जो कि सबसे महत्वपूर्णली प्राइमरीली उसका जो एनिमल्स में हार्ट होता है, और उसमें जो उसकी ब्लड होती है, जो मीडियम होता है, और उसकी जो कैपिलरीज होती हैं जिसमें आर्टरीज और वेन्स होती हैं। तो इन सारी तीनों चीज़ों को मिला के हम कह सकते हैं कि सर्कुलेशन प्रोसेस को हम देखेंगे। तो सर्कुलेशन किसका होगा? फ्लूइड का होगा। सर्कुलेशन किसका होगा? ब्लड का होगा। तो ब्लड जो है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक फ्लूइड है जो कि सारी चीज़ों को कैरी करता है। और लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन का मतलब ट्रांसपोर्ट होना, स्थानांतरण होना। फ्लूइड जो है वो स्थानांतरित होगी। तो ब्लड, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्लड जो है वो फ्लूइड है, तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो कैसे होगा? क्योंकि हम जब किसी भी फ्लूइड का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन क्या है? फ्लूइड इसमें ये एक सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से बना होता है। तो इसमें निश्चित रूप से हमने डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से आपको पिछले उस लेक्चर में बताने का प्रयास किया था। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अबाउट टू द स्टडी फॉर द well known that is the what is the diffusion process, when are the greater amount and goes into the lesser amount, that is the reason of the higher concentration to the reason of the lower concentration. So that is the same process which are going in the circulatory system, that is the blood is goes from to the other with the circulatory system। तो जो ब्लड होता है वो भी सर्कुलेट होगा, और सर्कुलेट होने के लिए ब्लड जो है हार्ट की मदद लेगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन तभी संभव हो पाएगा जबकि उसका हार्ट एक जो पर्टिकुलर प्राइमरी ऑर्गन्स होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स है आपके ब्लड के फ्लो के लिए, प्रिंसिपल है वो ब्लड। हार्ट को पंपिंग स्टेशन बोला जाता है, पंपिंग मशीन बोला जाता है, क्योंकि पंप करता है, पंप से प्रेशर जनरेट होगा। और लेकिन अब इसके साथ साथ में आपको समझना पड़ेगा कि पूरे बॉडी में जो पर्टिकुलर हायर वंस है, वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, और वो सिस्टम जो है उसमें जैसे मैंने बताया कि हार्ट है, ब्लड है, और उसके साथ साथ में उसकी कैपिलरीज हैं। तो आर्टरीज और वेन्स मतलब
पूरे बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी, ऑल अराउंड द बॉडी, दैट इज हैव टू द कैपिलरीज इन द फॉर्म ऑफ द आर्टरीज एंड द वेन्स विच आर कम्युनिकेटेड टू द पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज कॉल्ड टू द हार्ट से वो जुड़ी रहती है और हार्ट से ब्लड को लेके आती है या ब्लड को लेके जाती है। तो इस प्रकार से तो आपने देखा कि जो ब्लड है वो मीडियम है और ब्लड का फ्लो होना है, पूरे बॉडी में जाना है और वो आपके हार्ट के माध्यम से पंप किया जाता है और ब्लड जो है पूरे बॉडी में जाएगा। लेकिन पूरे बॉडी में पहुंचने के लिए उसको एक पर्टिकुलर एक रास्ता चाहिए, एक वे चाहिए, एक पैसेज चाहिए। तो वो पैसेज बनाती है आपकी आर्टरीज और वेन्स, जिसके माध्यम से बॉडी में ब्लड जो है पहुंचेगा या ब्लड वहां से आपके हार्ट में आता है। तो यहां पे दो चीजें आपको बता दें, मैंने जैसा कहा कि वेसल्स हैं, कैपिलरीज की बात हो रही है, तो वहां पे आर्टरीज और वेन्स की बात होती है। आर्टरीज और वेन्स जो है वो ब्लड को कंटेन करती है। तो लेकिन आपको यहां पे थोड़ा सा समझिए कि सर्कुलेशन प्रोसेस में ब्लड का फ्लो होगा, तो ब्लड का फ्लो अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉडी स्पेस में होगा, तो वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है। दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज द सिचुएशन और द अदर स्टेज व्हेन द प्रेशर विच आर राइजेस लो अप एंड हाई एंड लो, अप एंड डाउन थ्रू द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट के साथ में मतलब जहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा वो लो की तरफ जाएगा, तो वो उसमें उसकी कैपिलरीज बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। क्योंकि हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपकी वेन्स का और आर्टरीज का जो फॉर्मेशन है, वो जो उसका निर्माण है वो अलग अलग तरीके से है। तो उस प्रकार से हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमने पैसेज की बात की, तो वहां से हमारी बॉडी में पूरा पैसेज होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए। तो वो पर्टिकुलर जो सिस्टम होता है वो आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से होता है। तो मैंने कहा कि हार्ट में ब्लड आता भी है और हार्ट से ब्लड जाता भी है। टू हार्ट which are consist about to the particular vessels is called to the artery which have to the blood from to the away from heart, yeah, or the blood which are carries blood which goes to the towards the away from the heart through the आर्टरीज। आर्टरीज के माध्यम से जो ब्लड होता है वो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है, वेयर एज थ्रू द वेन्स विच आर कम्युनिकेटेड टू द हार्ट विच कैरी टू द ब्लड, दैट इज ब्लड which of the blood after the deoxygenation। मतलब कहने का वो जो ब्लड लेके आएगा जबकि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने के बाद जो लेस हो जाता है, लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कैरी करके लाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आर्टरीज के माध्यम से ब्लड जो होता है वो बॉडी पार्ट्स में पहुँचता है और बॉडी पार्ट से जो यूज्ड ऑक्सीजन लेने के बाद जो ब्लड बचा रह जाता है वो फिर से पुनः हार्ट में आना होता है, तो वो ब्रेन के माध्यम से आता है। तो ये एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। तो ये पर्टिकुलर जो सिस्टम होता है, दैट इज द पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। विद इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच आर फॉर्म टू द पर्टिकुलर पैसेजेस, दैट इज द ब्लड इज गोइंग फ्रॉम हार्ट टू द other body parts and then body parts to the heart, vice versa, and that is the process is the spontaneous, that is the natural phenomena in which to the blood goes to the away from the heart and towards the heart through the arteries and the veins. That is the form to the particular system which are have to the pressure gradient. That is the arteries and the veins have to the particular pressure gradient, and that is the that is the reasons the blood which are goes to from to the one place to the another place, one body part to the another body part, so that is the communication, that is the particular scenario demonstration which are have to the for the circulatory system. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन जैसा मैंने बताया कि ब्लड का होगा, तो ब्लड जो है वो पास करेगा, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में पहुंचेगा, एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचेगा। तो वो जब एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचेगा, मैंने जैसे पहले बोला कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो कार्डियो इज द हार्ट एंड द वास्कुलराइज्ड इज विच आर हैव टू द वेसल्स एंड दैट इज द गोज टू। तो एक पर्टिकुलर हार्ट के माध्यम से कैपिलरी और ब्लड के माध्यम से, कैपिलरी में जो आर्टरीज और वेन के माध्यम से जब ब्लड जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, मूवमेंट करता है थ्रू द पैसेज, और
बॉडी पार्ट्स में या बॉडी पार्ट से हार्ट में पहुंचता है, तो उस प्रकार के, और उसमें भूमिका किसकी है? हार्ट की है। हार्ट क्या है? पंपिंग मशीन है, पंपिंग स्टेशन है। दैट इज हार्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑर्गन्स विच आर सिचुएटेड इन टू द thoracic region, just below to the in between to the both side of the lungs, and just in front of the vertebrate column, so that this is a very important and that is the pump to the blood along with the pressure gradient and goes towards the body parts and once again coming into the heart. So that is the movement. What is the circulation? The movement of the blood through the vessels of the body induced by the pumping action of the heart. जैसा मैंने पहले भी बताया कि हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है, वो इंड्यूस करेगा ब्लड को, और वो इंड्यूस करके ब्लड जो है थ्रू द वेसल्स बॉडी पार्ट्स में, जो बॉडी का पार्ट्स है, बॉडी का जो वेसल्स होता है, द बॉडी वेसल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो वेसल्स हैं जिसमें आर्टरीज और वेन्स होती हैं, जो होती हैं वो उनके माध्यम से जो हार्ट होता है वो पंपिंग एक्शन के माध्यम से उस ब्लड को इंड्यूस करेगा थ्रू द चैनल, थ्रू द वेसल्स, थ्रू द आर्टरीज और वेन्स, गोस इनटू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, थ्रू द मूवमेंट, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन. दैट इज द मीनिंग ऑफ द सर्कुलेशन. तो कहने का मतलब ये है कि सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया है, सर्कुलेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ब्लड का मूवमेंट होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो हार्ट के माध्यम से, और जो हार्ट है क्या है? पंपिंग मशीन है, पंपिंग स्टेशन है, जो कि ब्लड को फ्लो करता है और ब्लड के फ्लो के माध्यम से वो आगे बढ़ता है, और वो ब्लड का जो फ्लो है वो पूरे ऑर्गेनाइज्ड, पूरे बॉडी में जाना है, प्रत्येक पार्ट में जाना है, प्रत्येक सेल में जाना है. तो प्रत्येक सेल में क्या होगा? आर्टरीज और वेन्स होगी, और आर्टरी वेन्स के माध्यम से ब्लड प्रेशर ग्रेडियंट के साथ में वो क्या करेगा? फ्लो करेगा, और फ्लो के माध्यम से वो कहां पहुंचेगा? पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचेगा, पर्टिकुलर पार्ट में पहुंचेगा, और वहां से, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सर्कुलेशन बोला जाता है. तो इसलिए मैंने कहा द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द वेसल्स ऑफ द बॉडी इंड्यूस्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. दैट इज द वन ऑफ द डिफिनीशन of the circulation. As you know that very well, that is the movement of the blood through the pumping action of the heart and through the vessels. In the another movement टू एंड फ्रो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टू एंड फ्रो? अब देखिए यहां पे समझिए टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है. जबकि कोई फ्लूइड, अब आप किसी भी रेफरेंस में समझिए, दैट इज द काइंड्स ऑफ द रेफरेंस विच आर प्रेजेंट पर्टिकुलरली टू द फ्लूइड. Blood is a fluid, blood is a medium that's add to the inorganic organic constitution, carbohydrate, lipids, vitamins, enzymes, hormones, and all the things which are necessary or the unnecessary for the body, that goes through the inside and outside of the body through the movement to and fro. To and fro movement हो रहा है, मतलब हार्ट थ्रू, मैंने पहले भी बताया हार्ट है, हार्ट के माध्यम से क्या है? एक चैनल बना है, चैनल के माध्यम से क्या होता है? वहां से ब्लड या तो बॉडी पार्ट्स में जाएगा या बॉडी पार्ट से आएगा. तो टू एंड फ्रो, इन एंड आउट, आउट एंड इन, तो दोनों के जो, तो उस प्रकार का एक साइंटिफिक वर्ड है ये टू एंड फ्रो का मूवमेंट. ये अपने एक जहां पे पर्टिकुलर पंपिंग स्टेशन है हार्ट के बाद की वो हम करते हैं, वहां से वो जा रहा है और फिर वो वहां से ब्लड फिर से आ रहा है. तो कैसा ब्लड होगा ये इसकी चर्चा हम बाद में अभी करेंगे. तो मूवमेंट टू एंड फ्रो, या फिर दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टू इन द अनदर वर्ड, जस्ट गो इनटू द अनदर सेंटेंसेस. Around something especially that of the fluid in the closed system. बहुत ही अच्छी लाइन है. Around something especially that of the fluid in the closed system. And a particular type of the system which is called to the closed system, which are organized, which consist, which convey and which are formed to the particular passages through the heart, blood and their vessels, which consist about which are have to the arteries and the veins. So the around something especially that of the fluid in the closed system. चारों तरफ
चारों ओर जो है वो जो फ्लूइड होता है, जो मीडियम होता है, जो ब्लड होता है, वो क्लोज सिस्टम में क्या करे, मूवमेंट करे, ट्रांसपोर्ट हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो। तो आपने एक सामान्य शब्दों में सर्कुलेशन का मतलब ये समझा कि सर्कुलेशन में जो हमारा फ्लूइड है, मतलब जो ब्लड है, वो क्या होगा, हार्ट से बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट से हार्ट में मूवमेंट करेगा, और वो मूवमेंट जो होगा वो स्पेशल ग्रेडियंट के माध्यम से होगा, एक प्रेशर के माध्यम से होगा, प्रेशर ग्रेडियंट बोला जाता है। पर्टिकुलर अगर प्रेशर नहीं होगा, जैसे आपने डिफ्यूजन प्रोसेस में समझा है कि कोई कहीं ना कहीं क्या इक्वलाइजेशन के लिए, इक्वालिटी के लिए, जब तक आयन जो चाहे वो सोल्यूशन हो, सॉल्वेंट हो, सल्यूट हो, आयंस हो, एटम हो, कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो प्रेशर ग्रेडियंट पे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे, डिफ्यूजन प्रेशर पे निर्भर करता है। और उसी प्रकार से जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं, उनका अलग अलग जो है हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और उनका अलग अलग जो है फिनोमेना है, जिसके आधार पे ब्लड उसको कैरी करता है, अलग अलग प्रेशर ग्रेडियंट के माध्यम से वहाँ पे कैरी करता है। आर्टरीज में कुछ अलग प्रेशर ग्रेडियंट होता है, वेन्स में कुछ अलग प्रेशर ग्रेडियंट होता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ग्रेडियंट प्रेशर विच आर हैव टू द आर्टरीज एंड द वेन्स, एंड दैट इज द अलाउड टू द ब्लड from their destination and to the which are going into the outside through the particular phenomena. So that in the here this is the definition of the circulation, and we are just go now. अब हमने definition देख लिया, definition के आगे हम बढ़ेंगे तो देखने का प्रयास करेंगे कि क्या सभी प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्या सभी प्रकार के एनिमल्स में एक ही प्रकार के सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है? All the animals which are done of their circulatory process, that is the circulation of the blood, is the same manner, same procedure, same pathway, same mechanism. This is possible or not? ये संभव है या नहीं? This is the different. तो अलग अलग एनिमल्स में जो सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। तो पहले हम एक ये समझते हैं कि क्या हर प्रकार के एनिमल एक ही प्रकार के सिस्टम जैसा क्लोज सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, क्या उसके अलग भी कोई सिस्टम होता है? तो हम यहाँ पे पहला समझने का ये प्रयास करेंगे कि क्या हर जो एनिमल्स हैं, ऑल द एनिमल्स विच आर अडॉप्टेड टू द सेम काइंड्स ऑफ द systems for the circulation or not in the evolution. What is the evolution? हम आज थोड़ा सा ब्रीफ में एवोल्यूशन को समझते हैं, क्योंकि जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, और वर्टिब्रेट जो जितने भी होते हैं, जो कॉर्डेट होते हैं, वो आपके इस पेपर में पढ़ाए जाते हैं। उनसे ही रिलेटेड सिस्टम हम यहाँ पे समझ रहे हैं फिजियोलॉजी के दौरान। तो हम फिजियोलॉजी में समझते हैं कि क्या जो एनिमल्स होते हैं, खासकर वर्टिब्रेट एनिमल्स, उसमें जो सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, वो एक जैसा होता है या फिर नहीं होता, या फिर जो इनवर्टिब्रेट होते हैं और वर्टिब्रेट होते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस पाए जाते ही नहीं पाए जाते, है ना? व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस इन बिटवीन टू द इनवर्टिब्रेट एंड द वर्टिब्रेट, और द डिफरेंसेस विच आर फाउंड इज द डिफरेंसेस इज द फाउंड इन टू द वर्टिब्रेट और द इनवर्टिब्रेट, which found or not, so that just look at here into the for the understanding about to the systems in the evolution. Evolution is a process. Evolution is a process in which to the all the animals which are go in the modification, in the changes which are have to the different kinds of the characters. कहने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन में क्या है? इवोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, gradual development of the animals, and the animals which are have to lot of the different characters. On the basis of this character, the animals which categorize into the different class, different phylum, different kingdom, so that which are here in for the particular system that is confined to the circulation, that is the circulatory system,
from the invertebrate to the vertebrate, invertebrate, that is the invertebrate animals, and to the vertebrate animals. यहाँ पे हम समझते हैं कि इनवर्टिब्रेट, पहले समझ लेते हैं कि इनवर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या सर्कुलेटरी सिस्टम एक जैसा होता है। हम आपको बताना चाहेंगे, वी आर जस्ट मेंशन दैट अबाउट टू द all the animals which are related to the invertebrate and vertebrate that have to the a particular system, that is the circulatory system. अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम होता है वो क्लोज है या ओपन है। तो आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स फिजियोलॉजी के अंदर का जो एनिमल्स हैं वो दो प्रकार के सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो क्लोज सिस्टम कहलाता है, एक ऐसा सिस्टम जो ओपन सिस्टम कहलाता है। अब इन दो सिस्टम के आधार पे हम ये यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि क्लोज सिस्टम क्या है और ओपन सिस्टम क्या है। हम सामान्यतः इन द लिटरली I will describe here to the what is the closed system and what is the open system. All the vertebrates and some invertebrate animals which are adapt to the closed system in the process of the evolution, in the evolutionary process, that animals which are adapt to the closed system. What it mean? It means that what is the meaning of the closed system? The closed system is that those systems which are have to a particular system along with the heart, blood, vessels, that means to the artery and veins. So the blood which are going from to the all around the part of the body, throughout the body, each part of the body, through the arteries and the vessels, which perform to the action of the heart, of the pumping mechanism, so that animals is called to the vertebrate animals. And तो कहने का मतलब होता है कि जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं जो वर्टिब्रेट एनिमल्स कहलाते हैं उनमें क्लोज सिस्टम पाया जाता है, जिसमें हार्ट होता है, ब्लड होता है, उसकी वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स पाई जाती हैं, और इसी आर्टरी और वेन के माध्यम से जो ब्लड होता है वो हार्ट के पंपिंग मैकेनिज्म के माध्यम से प्रत्येक टिश्यूज में पहुंचता है और वहां से फिर से टिश्यूज में लाता है। हम यहाँ पे आपको मेंशन कर दें कि ब्लड जो है वो टिश्यूज में जा रहा है और टिश्यूज से वापस आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? दैट टू deoxygenated blood and the more oxygenated blood. In the another words, oxygenated blood and less oxygenated blood. कहने का मतलब ये है कि जब ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है रेस्पिरेशन के माध्यम से, पर्टिकुलरली इंस्पायरेशन के माध्यम से, जब ऑक्सीजन जो है एनवायरमेंट से ब्लड में पहुंचता है, ब्लड कैरी उसको करता है और प्रत्येक टिश्यू में ले जाने का प्रयास करता है, जस्ट ट्राइंग द carried about to the oxygen through the blood, just one to that about to the blood which are going in the tissue, so that तो वहां पर ये जो सिस्टम है ये थ्रू द चैनल जा रहा है, थ्रू द पैसेज जा रहा है, वहां पे आर्टरीज और वेन्स की भूमिका है, ब्लड की भूमिका है, हार्ट की भूमिका है। ऐसा नहीं है कि जो है ओपन सिस्टम में ये सब सारी चीजें नहीं पाई जाती, लेकिन उसका जो सिचुएशन होता है, लोकेशन होगा और उसका जो इवोल्यूशन होगा वो अलग होगा। तो हमने आपको बताया, यहाँ पे देखिए क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द वेसल्स दैट आर सेपरेट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द बॉडी। क्लोज सिस्टम के अंतर्गत जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करेगा और पंपिंग जो ब्लड है वो वेसल्स के माध्यम से वो कहाँ पे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जो इंटरस्टिशियल जो हमारी फ्लूइड होती है उससे अलग रहेगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स पाई जाती हैं हर प्रकार के अलग। द बॉडी विच आर demands that the particular type of the fluid, that is the fluid material, that is plasma, protoplasm, cytoplasm, extracellular, intracellular fluid,
that is the blood, water. So so many kinds of the fluid which are present inside the body, and that is the different from to each other. So here to the blood is always to different to each other, and that is the procedure, that is the passage, which passage is called to the closed system, and through the closed system which are adapted of the higher animals, particularly all the vertebrates, through the heart, along with the vessels, go into their destination and separated from to their interstitial vessels. तो यहाँ पर ये जो क्लोज सिस्टम में ये हार्ट, ब्लड और वेसल्स के माध्यम से ब्लड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में पहुँचता है, जो उसके इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है बॉडी का, उससे बिल्कुल अलग होता है, उसको सेपरेट करता है. तो एग्जांपल मैंने पहले भी बताया, मोस्ट वर्टिब्रेट एंड सम इनवर्टिब्रेट. तो सम इनवर्टिब्रेट में आपको बताना चाहेंगे जो एनिलिड्स होते हैं, एनिलिड्स में जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उसमें क्लोज टाइप ऑफ द सिस्टम. तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और पर्टिकुलर जो है शॉर्ट नोट में, कि क्लोज टाइप ऑफ द सिस्टम एंड ओपन टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होता है, और किस प्रकार के एनिमल्स में विच टाइप ऑफ द एनिमल्स विच आर रिलेटेड टू द और द हैव टू द ओपन सिस्टम एंड द क्लोज सिस्टम. So go now to the another one into the opposite system of the closed system, that is the open circulatory system, open system. यहाँ पर एक बात ये है कि जब पूरे एनिमल्स का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो टैक्सोनॉमी के डिफरेंशिएशन में एक सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट बोला जाता है, रीजन बोला जाता है, या बेस बोला जाता है, फंडामेंटल ये एस्पेक्ट है कि those of the organism which are have to the a particular system through the evolutionary process, which categorize into the different ones, so that into the another ones after that the closed circulatory system is the open circulatory system. अब open circulatory system क्या है? क्लोज में आपने देखा हार्ट है, ब्लड है, और उसकी क्या वेसल्स है, वो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, प्रेशर ग्रेडियंट के साथ उसमें फ्लो होता है सर्कुलेशन का और ब्लड का. तो इसमें देखते हैं पंप ब्लड इनटू द कैविटी कॉल्ड टू द हीमोसील where it surrounds the organs and then the return to the heart through the ostia. यहाँ पे जो प्रक्रिया है बदल जाती है, मैकेनिज्म यहाँ बदल गया है, और ये जो ओपन सिस्टम होता है वो मोस्टली इनवर्टिब्रेट एनिमल्स से पाया जाता है. हम आपको मेंशन कर दें, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस. आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस जो एनिमल्स होते हैं, जो मोलस्कस का मतलब आप जानते हैं सॉफ्ट बॉडीज होता है, आर्थ्रोपोड्स का जॉइंट्स जो एनिमल्स होते हैं, जो जॉइंट पार्ट्स को रखते हैं, वो एनिमल्स. तो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस जो होते हैं वो इस प्रकार के सिस्टम, हम आपको बता दें एक चैनल के माध्यम से, इसमें ओपन सिस्टम में क्या अंतर होता है. ये देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंप ब्लड जो है, पंप ब्लड इनटू द कैविटी कॉल्ड टू द हीमोसील. हीमोलिम्फ पाया जाता है, या हीमोफ्लूइड बोल सकते हैं आप. एक पर्टिकुलर ये कैविटीज होती है, और ये कैविटी जो होती है वो ऑल अराउंड ऑर्गन्स होती है. जैसे हमारे अगर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो कि हमने आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस की बात की, इनके चारों तरफ ऑर्गन्स हैं, और ये ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, उसके बीच में एक पर्टिकुलर प्लेस होता है. ये भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है. जैसे कहने का मतलब होता है कि हर एनिमल्स जो है एवोल्यूशन से बना है. हमारा जो हार्ट है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो किडनी है, ये सब इवोल्यूशन है. अब इसमें एक पर्टिकुलर क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया है कि सीलोम. व्हाट इज द सीलोम? द गट वॉल एंड द बॉडी वॉल विच आर हैव टू द पर्टिकुलर स्पेसेस, दैट इज कॉल्ड टू द सीलोम. सीलोम is the space in between to the gut wall and body wall, mesoderm and endoderm. mesoderm और endoderm के बीच में जो पर्टिकुलर स्पेस पाया जाता है उसको हम सीलोम बोलते हैं. सीलोम क्या है? वस्कुलराइज हॉलो स्पेस है, एक स्पेस है. तो उसी प्रकार से ये जो हीमोसील, यहाँ पे देखिए हीमोसील है. सील का मतलब गुहा होता है, हॉलो स्पेस होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, और पर्टिकुलर स्पेस में क्या होती है, फ्लूइड भरी होती है, फ्लूइड पूरा, और उसके चारों तरफ ऑर्गन. देखिए यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से हम समझते हैं, पंप्स ब्लड इनटू द कैविटी कॉल्ड हीमोसील. ये देखिए जो ब्लड है, ब्लड इनटू द कैविटी, ये कैविटी है, इसमें ब्लड है, और उसको क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं. वेयर इट सराउंड्स द ऑर्गन, जो कि चारों तरफ के
ऑर्गन से सराउंड किया हुआ है, देन रिटर्न्स टू द हार्ट, और ये बाद में क्या हार्ट में रिटर्न करता है, रिटर्न थ्रू द ऑस्टिया। द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ऑस्टिया क्या है? ऑस्टिया एक ओपनिंग है, एंड दैट्स ओपनिंग। तो कहने का मतलब आपने समझ लिया होगा, अगर हम इस प्रकार का स्पेस बनाए तो यहाँ पे ओपनिंग्स बना दें, और इस ओपनिंग के माध्यम से क्या करते हैं, ये यहाँ से खुल के हार्ट में जाता है। तो आपने देखा क्लोज सिस्टम में क्या है, हार्ट से आर्टरी और वेन्स जुड़ी है डायरेक्टली, और डायरेक्टली जुड़ने के बाद जो वेन्स होती है और आर्टरीज होती है वो डायरेक्टली हार्ट से जुड़ी है और डायरेक्ट जो है ब्लड को वहां पे पहुंचा रही है। जबकि यहाँ पे इसमें क्या आपने देखा, एक पर्टिकुलर स्पेस है, हॉलो स्पेस है, जिसके माध्यम से वहां पे एक ओपनिंग्स है, और वो ओपनिंग एक पर्टिकुलर कैविटी से जुड़ी है, और वो कैविटी हीमोसील बोला जाता है, इन्हें हीमोलिम्फ बोल सकते हैं आप, हीमोसील यहाँ पे फ्लूइड बोल सकते हैं। ये ब्लड है, और ब्लड तब जाके वापस में ये आपके यहाँ पे जो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस टाइप के एनिमल्स होते हैं वहाँ से जुड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में यही अंतर होता है, डायरेक्टली जो ब्लड है वो फ्लो करता है क्लोज सिस्टम में, और ओपन सिस्टम में इनडायरेक्टली थ्रू द पर्टिकुलर spaces through the particular cavity or is going to the heart। तो यहाँ पे ब्लड पंप होता है। तो दो प्रकार के आपने सिस्टम को यहाँ पे समझा। तो जो मेन एस्पेक्ट है हमारा आज टॉपिक का वो ये है कि तो पहले हमने सर्कुलेशन समझा, हमें पढ़ाना है टाइप ऑफ द सर्कुलेशन, लेकिन टाइप ऑफ द सर्कुलेशन से पहले हमें ये समझना पड़ेगा सर्कुलेशन क्या है, और ये सर्कुलेशन अलग अलग एनिमल्स में कैसा होता है। तो व्हाट इज द सर्कुलेशन एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम for the circulation in the animals, that is the adopt which modified which form during to the evolution process, so that closed type, open type, closed type which are have to the blood and the blood heart and their capillaries which directly which are related into the open type, that is the a particular type of the area, the hollow space which called to the hemocoel, and that hemocoel have to the fluids, that is the blood, and joined to the heart through the cavities, so that the open type, and that is related to the closed system is the all vertebrates and to the sum of the invertebrate, and the open system is the arthropod and the mollusca. So that we will go now to the basic topic is the type of the circulation. What is the type of the circulation? Circulation is the kinds of the movement which are goes for the blood. Blood is go now to the from to the one place to another place, which can say that is the heart flow to the blood from another one. तो यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, तो किस प्रकार का होगा? जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, हम आपको बताएं, वर्टिब्रेट एनिमल्स जो है वो अलग अलग प्रकार के सर्कुलेशन प्रोसीजर को यूज करता है, अडॉप्ट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, और ये जो प्रोसीजर है वो नेचुरल फेनोमेना है, वो एवोल्यूशन प्रोसेस से हो क्या है, the animals which adopt to the circulation processes, type of the circulation mechanism for the blood through the closed system, within a system, through the pressure gradient, blood go now their destination is once again in the heart through the channels, so that different kinds of the systems, different kinds of the evolution or the modifications are the changes which are takes place through the using to the lot of the times। बहुत लंबा टाइम लगता है इवोल्यूशन के दौरान, जिसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जो एनिमल्स है वो अलग अलग प्रकार के प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पे एनिमल्स के अंतर्गत वर्टिब्रेट एनिमल्स भी देखना है, तो हम टाइप ऑफ सर्कुलेशन के अंतर्गत देखते हैं कि कितने प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, विच टाइप ऑफ द सर्कुलेशन विच फॉलो द वर्टिब्रेट एनिमल्स
that is, there are the three types, basically three types of the circulation which follows to the all the vertebrate animals, which in the process of the evolution is the gradual process in which to the adapt to the animals of the particularly vertebrate animals, the which started now to the prochordate to the mammals. So that we are just want to let us see in here to the proper vertebrate animals, that is the fishes, amphibians, reptilians, aves and mammals. They are the 5 categories. Is so important and actually is called to the vertebrate animals and the chordate animal, because these are the highly evolved animals in the evolutionary process that have to the higher characters of the lower in the lower ones, so that it started to the circulation type of the circulation. तो 3 प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं और 3 प्रकार के सर्कुलेशन में सिंगल सर्कुलेशन, मिक्स डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन को कहा जाता है। लेकिन जबकि मैमल्स के केस में जब फिटस कंडीशन होता है, जब एम्ब्रियोज होती है, उस समय किस प्रकार का सिस्टम इवॉल्व होता है हम आपको बताना चाहेंगे। तो मैंने पहले you are just try to understand about to the what is the situation and the organization of the each of the body system and the body which are body organs which are associated, integrated, cooperated, coordinated to each other for the best working, for the best mechanism, best for procedure, for giving and production, synthesis, breakdown, a lot of the chemical reaction is going on is which are related to it. So here now go to the first of all to the circulation. So all the process, all the organs which are communicated to each other, that is formed to the organ system and organized to the particular body. In the you are that know very well, there are the some of the previous lectures was discussed about to the digestion and the respiration, and today is the circulation, that is which are related to each other. In the particular, just mention that about to the in the circulation process, where are the oxygen which are received from the environment and the CO2 which expired air after the metabolic process is go now through the blood in the process of the expiration. So that we just try to understand about to the what is the connection, what is the importance, what is the role and the functions of the all the system to each other. जैसा मैं बता रहा हूँ कि जैसे रेस्पिरेशन में आपने ऑक्सीजन को कंटेन किया, CO2 को एक्सपायर करते हैं, बहुत सारे विजुअली प्रोसेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंतर्गत वो प्रक्रिया की जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम आपको 2-3 चीज़ें बताएं आपको कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा लेस, तो एवोल्यूशन प्रोसेस में धीरे धीरे जब विकास होता है तो विकास की प्रक्रिया में जो ऑर्गन्स होता है वो प्राइमरीली से कॉम्प्लेक्स में, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। तो जैसा जैसा ऑर्गन्स बढ़ते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है एवोल्यूशन के दौरान एनवायरनमेंट के प्रभाव से, तो वो बदलाव होता है और बदलाव से वो हायर ऑर्गन्स में कन्वर्ट होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम फिजिक्स से स्टार्ट करें और मैमल्स तक जाएं तो आप लगातार देखेंगे कि रेस्पिरेशन सर्कुलेशन जो मैकेनिज्म है वो मोर एंड मोर जो है कॉम्प्लेक्स होता गया और उसी प्रकार से हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हम जब सिंगल सर्कुलेशन की बात करें, सिंगल सर्कुलेशन जो कि मोस्टली केवल फिशेस में पाई जाती है, फिशेस इज द एक्वेटिक एनिमल। फिश क्या है? एक्वेटिक एनिमल है। आपने एडाप्टेशन पढ़ा होगा, यू जस्ट नो वेरी वेल अबाउट टू द प्रोसेस ऑफ द एडाप्टेशन। व्हाट इज द एडाप्टेशन? एडाप्टेशन इज द मैकेनिज्म द एनिमल्स विच अलाउ टू according to the body, according to the environment, the body which are a homeostatic, a steady state.
एक इक्विलिब्रियम लेवल पर अपनी बॉडी को की गतिविधि को, अपने बॉडी की संरचना को, अपने बॉडी के फिजियोलॉजी को, बॉडी टेम्परेचर को बना के रखना किसके आधार पे? इन्वायरमेंट के आधार पे। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी में अगर हम जो परिवर्तन लाते हैं और परिवर्तन करके अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, विच मीन्स दैट देयर बॉडी ऑल द फिजियोलॉजी विच आर चेंज्ड in accordance to the environment, the environment which are directed, environment is the enhances, environment is the induces to the all the animals, all the organisms which found on the earth, so that the animals which adopt, which goes into the modifications for the survival, to have to the changes in the form of the characters, physiology and all the things. तो एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनवायरनमेंट के अनुसार जब एनिमल्स अपने बॉडी फिजियोलॉजी को, बॉडी टेम्परेचर को उसके हिसाब से डालता है, तो हमारा जो फिजियोलॉजी वर्क है वो चलता है, उसके आधार पे हम जीते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं को लिटरली आप जानते हैं, यूजुअली आप जानते हैं। हमें क्या दिखाना है कि एडाप्टेशन करता है, और मैंने कहा कि जो फिशेज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, दोज ऑफ द एनिमल्स विच आर लिव एक्सक्लूसिवली इन द वाटर, देयर एंसेस्टर and the progeny as well which are live in the water, उसके इंसेस्टर और जो प्रोजेनी है, जो इंडिविजुअल है, वो हमेशा वाटर में ही बिलोंग करे, वाटर में ही रहे, वहीं पे लीव करे। तो इस प्रकार के एनिमल को एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। वैसे तो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल दो कैटेगरी में रखे गए हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में जो होता है वो एनिमल्स आते हैं जिनके एंसेस्टर और जो इंडिविजुअल एक्वेटिक एनिमल्स है वो हमेशा वाटर बॉडीज में ही पाया जाता हो, बॉर्डर के बाहर, मतलब वाटर बॉडीज के बाहर या सॉइल पे ना पाया जाता हो। तो इस प्रकार के एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है प्राइमरी में। सेकेंडरी में वो एनिमल्स आते हैं जिनके एंसेस्टर पहले लैंड पे या फिर हमारे सॉइल पे और वाटर में, दोनों स्थान पे पाए जाएंगे। जैसे टार्टाइज एंड टर्टल्स होते हैं, वो पानी में भी और सॉइल पर भी रह सकते हैं। तो हम एक्सक्लूसिवली फिशेस की बात करते हैं, तो फिशेस जो होती हैं वो प्राइमरली जो है एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो आप सब जस्ट यू कंसीडर्ड अबाउट टू द व्हाट इज द लाइफ cycle, life span, life procedure of the fishes, because which are live into the water, and that to the mechanism of the adaptation, mechanism of the environment, mechanism of the adaptation, the according to the environment, the fishes which are adapt in the water, which receive to the water along with the oxygen, which perform to the all the activities. जो फिशेज होती हैं वो अपने सारी प्रोसीजर को, अपनी गतिविधि को, अपने जीवन को ऑक्सीजन और वाटर के माध्यम से चलाती हैं। वाटर से ही H2O जो कंबाइंड फॉर्म में है वहां से ऑक्सीजन लेके करती हैं। तो आप ये समझिए कि क्या जो है फिशेज में भी लंग्स पाया जाता है क्या। लेकिन यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि जो फिशेज होती है वो उसमें इवोल्यूशन प्रोसेस के माध्यम से एक्वेटिक होने के कारण उसमें गिल्स पाई जाती हैं, लंग्स की कोई भूमिका नहीं होती, या कहें लंग्स उसमें नहीं पाया जाता। ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया, व्हाट इज द ऑक्सीजनेशन? व्हेन ऑफ द ऑक्सीजन विच आर जॉइंड कैरीड बाय द ब्लड, दैट इज कॉल्ड टू द ऑक्सीजनेशन एंड द तो ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया होने के लिए जो हीमोग्लोबिन है या ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जो फिशेज होती हैं वो ब्लड के माध्यम से ही जो वाटर में रहती हैं, वाटर बॉडीज में पाई जाती हैं, वो चाहे पॉन्ड्स हो, पुल्स हो, लैक्स हो, रिवर हो, ओशियन हो, सी हो, हर जगह पे पाई जाती हैं। तो उसके हिसाब से उनका एडाप्टेशन होता है और उसी प्रकार से उनका जो है लाइफ स्पॉन चलेगा, लाइफ प्रोसीजर चलेगा। तो वो H2O के रूप में ऑक्सीजन को कंटेन करती हैं। डायरेक्टली वो जो है वो उनमें कोई
एक सिस्टम नहीं होता, नेजल पैसेजेस नहीं होते, वो H2O के माध्यम से जो गिल्स पाई जाती है वहाँ से वो रिसीव करती हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया कि दैट इज द ऑक्सीजन विच आर टेकन बाय द फिश थ्रू द डिसॉल्व फॉर्म, combined form through the H2O, that's the oxygen which are receiving by the fishes, and that participate of the oxygen into the metabolic process. So that gills is a very important primary organ for the oxygenation. तो यहाँ पे फिशेस में तो हम एक एक करके आपको बताते चलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन जो कि फिशेस में पाए जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है। सिंपल सा आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे इस प्रकार का एक सिस्टम है, ये सिस्टम इवॉल्व हुआ है फिशेस में, और ये जो फिशेस होती हैं ये एक कॉमन प्रोसीजर के तहत इस मैकेनिज्म से अडॉप्ट करती हैं, और ये डायरेक्टली ये देखें इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे ये, और आपका ये क्या है, ये आपका हार्ट है, ये बॉडी पार्ट्स है, ये गिल्स है। किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं हम, जो कि फिशेस में पाया जाता है। सिंपल टाइप सिंगल सर्कुलेशन इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। एवोल्यूशन प्रोसेस में जो मैंने कहा कि ये वर्टिब्रेट एनिमल्स है, और वर्टिब्रेट में क्लोज टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं। यहाँ पे जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड हार्ट पाया, देयर आर द टू चैम्बर्ड हार्ट विच आर फाउंड in the fishes during to the evolution process, that add to the single orchil and the single ventricle. Single one orchil and one ventricle. One auricle and one ventricle. One auricle and one ventricle. And for the oxygenation that is found, the fishes which are have to the gills, and the circulation of the blood, the flow of the blood which are directly goes through with the help of the arrow, just indicating that to the flow of the blood along with the heart for the oxygenation, that is the gill is present in the fishes. The gills which are the gills is adapted for the oxygenation to the gills, and when the H2O goes through the gill pores inside the body, where are the vascularization takes place, which means that the arteries and the veins is present. The oxygen which are carried by the blood, so that the gills is the oxygenation place. The gills in the higher ones, that is particularly in the human beings and the higher animals, that is adapted to the lungs for the oxygenation, where are the oxygen which are joined to the blood. But in the case of the fishes, that is the gills is present for the oxygenation. Gills is the place where are the H2O enters inside and which are carried by to the arteries. So the blood which is carried by the gills, तो यहाँ पर ये कैरी किया जा रहा है, and after that which directly goes in the body parts. The fish's body part is directly receive blood after the oxygenation of the gills. Gills is provides to the blood is directly to the body parts, and then body parts is flow to the blood in the lungs. That is the one auricle and one ventricle directly. One auricle, the blood is propelled through the auricle, then ventricle, and once again goes for the oxygenation into the gills. So this is the single circulation. That means in the fishes the single circuit. The blood goes only one time through the circuit in the heart, so that's called to the single circulation. One auricle, one ventricle in the evolution, and so that
those of the blood which are goes directly in the body after the oxygenation of the gills is the venous blood, and the behalf of the venous blood, the heart is related to the venous heart. तो कहने का मतलब था ये जो सिंगल सर्कुलेशन होता है उसमें डायरेक्टली गिल से ब्लड बॉडी पार्ट्स में फिसस के जाता है और इसके कारण इसको वेनस ब्लड कहा जाता है। तो वेनस ब्लड से रिलेटेड होता है ये जो हार्ट, इसको वेनस हार्ट कहा जाता है। और आपको यहाँ पे बता दें जो गिल से ये ब्लड आगे बढ़ रही है क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी कर चुकी हैं, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और जो बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि मैंने कहा कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी प्रत्येक टिश्यूज में, उसके बाद जो CO2 वहां से निकलेगा तो वहां से ऑक्सीजन लेस हो चुका है, इसलिए इसको लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं होता, और फिर से एक बार ऑक्सीजनेट होने के लिए वो उस चैनल के माध्यम से once again goes to the in the circulation for the oxygenation in the gills, and gills is directly provide to the blood of all the parts of the body or the pieces, and all the body parts after the metabolism provides to the blood, which the blood in the heart. So in the single circulation, that is the simple type of the circulation, direct circulation, and to the which have to the auricle and the one ventricle. So go now into the mixed double circulation, and that is the example of the amphibia and the reptilia. Amphibians और reptilian में except crocodilian को छोड़ के, क्रोकोडाइल्स जो होते हैं उन क्रोकोडाइल को छोड़ के और जितने भी होते हैं वो सारे मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन में होते हैं। अब इसका एस्पेक्ट क्या, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ द मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन? इन द मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, दैट इज द चेंजेस व्हिच आर टेक्स प्लेस, चेंजेस व्हिच आर अकर्स व्हिच टेक टू द टाइम द single one auricle and one ventricle is divided to the auricle into the another one. The one auricle goes in divided into the two, but in the ventricle is not divided. Ventricle is not modified, and the single ventricle till now to the adult ones. कहने का मतलब ये है कि यहाँ से सिंगल सर्कुलेशन में एक ऑर्किल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, और लेकिन मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन में यहाँ पे जो ऑर्किल और जो वेंट्रिकल होगा उसमें परिवर्तन होगा। यहाँ पे ऑर्किल दो हो जाती हैं, 2 ऑर्किल, लेकिन जो वेंट्रिकल्स होती हैं उसका जो मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता, वो दोनों ऑर्किल से जुड़ी रहती हैं, और दोनों ऑर्किल से जुड़े होने के कारण जो ब्लड होता है वो मिक्सअप रूप में दोनों तरफ से जाता है, इसलिए इसको मिक्स डबल सर्कुलेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये फेनोमेना होगा, प्रोसीजर होगा और सिस्टम होगा, वो इस तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा। तो इस सिस्टम को हम देखते हैं, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसा होगा, इस प्रकार का मैकेनिज्म होगा। सिंपल तरीके से हम समझे तो सिस्टम को अडॉप्ट करता है, तो देखिए इस प्रकार का सिस्टम होगा, यहाँ पे इस प्रकार का। यहां से हम क्या करेंगे, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करेंगे। ये आर्टरीज है, वेन्स है, इसका देखिए इस तरीके से कनेक्शन करते हैं हम, एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ओपनिंग्स है, और ये मैंने कहा कि ये अब क्या है, ये डिवाइड हो गए ऑर्किल, तो ये सिंगल ऑर्किल थी डबल हो गई, तो अब डबल हो गई तो जो हार्ट होगा उसमें साइड हो जाएंगी, तो साइड के हिसाब से लेफ्ट एंड राइट साइड। तो अब आप देखें ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो राइट ऑर्किल को एट्रिया भी बोला जाता है, ऑर्किल एंड लेफ्ट ऑर्किल। और अब आप देखें, मैंने जैसा बताया कि वेंट्रिकल में कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, एवोल्यूशन प्रोसेस में कोई वहां पे मदद नहीं कर रहा है उसके मॉडिफिकेशन में, तो इसलिए ये दोनों को ज्वाइन कर रही है, दोनों को असिस्ट कर रही है, दोनों को एसोसिएशन में रख रही है, और इसके आधार पे
एक चीज यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, अब जबकि मैंने फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन में ये बताया कि सिंगल सर्कुलेशन में गिल्स होती हैं और फिशेस जो होती हैं एक्वेटिक होती है, लेकिन इसके बाद आप जब देखेंगे तो जो जितने भी हायर एनिमल्स होंगे उसमें लगातार परिवर्तन होगा और उसके हैबिटाट में भी परिवर्तन होगा, विच आर चेंजेस टू द हैबिटाट ऑफ द into the more and more complex animals that is called to the higher animals, including to the human beings as well, so that in the process that is the here to the lungs, the evolution of the lungs and here to the body parts is goes to directly through the channel, just like to the demonstration or representation of in the mixed double circulation। तो यहाँ पे आप देखें, ये मैंने बी लिखा है ब्लड बॉडी पार्ट्स या लंग्स एंड, और ये देखें पैसेज है, ये हार्ट हो गया, तो ये राइट ऑर्किल वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल हो गई। अब देखिए ब्लड का फ्लो कैसा होगा, द थ्रू द एरो द फ्लो ऑफ द ब्लड। देखें यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये यहाँ पे चेंज आ रहा है, और चेंज होने के कारण देखिए एरो मैंने कैसे लगाया, अब यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन मॉडिफाइड होके मिक्स डबल सर्कुलेशन में जा रही है, जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट हो है। देयर आर द 3 चैम्बर्ड हार्ट इनटू द मिक्स डबल सर्कुलेशन, 2 artery and 1 ventricle, and the ventricle which are joined to the both of the atria for the receiving to the blood goes to the both side of the one is the body part and another is the for the oxygenation in the lungs, so that to the blood will go 2 times in the heart for the blood circulation, for once is the oxygenation and once is the receiving to the body parts for the oxidation। So in here अब यहाँ पे आप देखें कि कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर हम ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया से स्टार्ट करें, लंग्स जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे होता है, मैंने पहले भी कुछ लेक्चरों में पिछले लेक्चरों में बताया, तो वहाँ पे ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया होती है, तो लंग्स जो होता है वो हाईली वस्कुलराइज्ड होता है, कैपिलरी आर्टरीज वेन्स वहाँ पे पाई जाती हैं, और वहाँ से देखें तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन जो आफ्टर द मेटाबॉलिज्म जो ब्लड ऑक्सीजन को सेल में पहुंचा के आ चुका है, वहां से अगर शुरुआत करें हम तो देखिए ये ब्लड लंग्स में गया, किसके लिए, फॉर द ऑक्सीजनेशन, लंग्स में जाएगा, एंड लंग्स में जाने के बाद ये क्या करेगा, लेफ्ट ऑर्किल में जाएगा। तो लेफ्ट ऑर्किल में कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ में ब्लड जाएगा, और वो उसके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल, तो यहाँ पे सिंगल वेंट्रिकल है इसीलिए उसी वेंट्रिकल के साथ में यहाँ से देखें ये, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा उसी समय इन द सेम टाइम दैट इज द सेम प्रोसीजर द अनदर साइड the deoxygenated blood is also went into the ventricle, so that both of the blood is oxygenated and deoxygenated is mixed with each other. Partial mix up is the takes place, so that to the partial mixed blood is goes to the body। अब यहाँ से ये मिक्स अप ब्लड यहाँ से बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और आफ्टर द ऑक्सीजनेशन ये लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से राइट ऑर्किल में जाएगा, क्योंकि बाइफर्केशन ऑर्किल का हो चुका है, इसलिए यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आपने देखा तो बॉडी पार्ट से ये यहाँ पे राइट ऑर्किल से होता हुआ उसी सेम वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाएगा, और लंग्स में एक बार जो है फिर हार्ट में जाएगा, किसमें, बॉडी पार्ट के लिए। तो दो टाइम देयर आर द 2 times ऑफ द ब्लड इज goes through the heart, which means that to the blood is goes inside in the heart is the 2 times for the circulation, one is for the oxygenation and another is for the receiving to the each part of the body and takes place to the oxidation and the chemical reactions, and that's to the
तो व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस, दैट इज द दिस इज द इवोल्यूशन प्रोसेस, इवोल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ द एबार्टिक आर्चेस। तो यहाँ पे देखें मिक्स डबल सर्कुलेशन में जो एम्फीबिया और रेप्टिलिया से बिलोंग करता है, क्रोकोडिलिया को छोड़ के, क्योंकि क्रोकोडिलियंस में हमेशा फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जो कि एवीज और मैमल्स की तरफ होता है। तो हम डबल सर्कुलेशन से, मिक्स डबल सर्कुलेशन से डबल सर्कुलेशन की तरफ चलते हैं। वी आर गो नाउ टू द राइट, go now to the double circulation is the proper circulation, is the highly well developed circulation, and that's seen in the aves and mammals, बर्ड्स और मैमल्स में पाए जाते हैं। और इसमें हम देखेंगे कैसा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे एवोल्यूशन प्रोसेस के माध्यम से जो ऑर्किल पहले से डिवाइड हो चुका है, यहाँ पे जो वेंट्रिकल था वो सिंगल था और बाइफर्केट होगा, और इसका जो डिवाइडेशन इस प्रकार से हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दें, इस प्रकार से डिवाइडेशन करेंगे हम तो देखेंगे कि 2 ऑर्किल एंड 2 वेंट्रिकल, इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। और इस प्रकार से डिवाइडेशन होने के कारण अपने अपने जो वेंट्रिकल्स हैं इसकी इस प्रकार से हम देखेंगे, ये देखें चैनल हम बना रहे हैं, पैसेज बना रहे हैं, और उस पैसेज के माध्यम से वो अपने अपने ये देखें चैनल बन गया, ये चैनल इस प्रकार से, और दूसरा चैनल थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे हम, इस तरीके से करेंगे तो देखें ये दूसरा, ये तो आप देखें ये चैनल, इससे और इससे समझने का, कंपैरिजन करने का प्रयास करें तो अब देखिए यहाँ से सिंगल वेंट्रिकल थी, ये बाइफर्केट हो गई है एवोल्यूशन प्रोसेस में, एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म में एडाप्टेशन के माध्यम से ये चेंज हो चुकी है। तो 2 वेंट्रिकल 2 ऑर्किल, द डबल सर्कुलेशन is the which are have to the 4th chambered heart, 2 orchil and 2 ventricle. The blood is goes 2 times in the heart, in the heart for the oxygenation and the oxidation. And so go now into the right orchil, left orchil, right ventricle, and the left ventricle, that is the lungs, and these are the body parts, that is only to the representation. And when that is the arrow through the right orchil, the right ventricle, and through the for the oxygenation, go now once again to the right orchil, left ventricle, left orchil, left ventricle, and then body parts. तो इस प्रकार से सर्कुलेशन में आप यहाँ पे क्या डिफरेंस देखा, एवोल्यूशन में यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन, यहाँ पे सिंगल वेंट्रिकल था, लेकिन यहाँ बाइफर्केट होके यहाँ पे हो गया डबल वेंट्रिकल हो गया। तो यहाँ पे ब्लड का मिक्सअप नहीं होता, प्योर शुद्ध ब्लड जो होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक तरफ से जाता है और एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और इसीलिए ये हाईली वेल डिफाइंड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो मैमल्स और ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, जहाँ पे 4th चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल है, और उससे जुड़ी कैपिलरीज और उसकी वेन्स है, वेन्स और आर्टरीज पाई जाती हैं। आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को बॉडी पार्ट्स में पहुँचाती है, जबकि वेन्स जो होती है बॉडी पार्ट से जो ब्लड होता है वो लेके आती है। मतलब less oxygenated which are carried by to the veins, and the more oxygenated is the arteries, so that these are just to the look। हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल, मिक्स डबल एंड डबल सर्कुलेशन की बात की। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि जब मैमेलियन एम्ब्रियो होता है उस समय किस प्रकार का, तो उस समय सिंगल सर्कुलेशन की तरह होता है, और यहाँ पे लंग्स नहीं होता, उस समय प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से डायरेक्टली जो है बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। लेकिन वहाँ पे 4th चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे लंग्स जुड़ा होगा वहाँ प्लेसेंटा होगा, और प्लेसेंटा से डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स में होगा। लेकिन जैसे ही बर्थ होने का प्रयास होता है, बर्थ होने का टाइम नज़दीक आता है, तो ये जो प्लेसेंटा होता है धीरे धीरे मॉडिफाइड हो जाता है लंग्स में, और जो है फिर वो लंग्स के माध्यम से इसी प्रकार से डबल सर्कुलेशन में चेंज हो जाता है, और प्रॉपर रंग से सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है। तो एवीज और मैमल्स जो होते हैं इसी बगड़ से, और आपको बता दें एवीज में थोड़ा सा और पिक्यूलियर होता है, लंग के साथ में उसमें एल्वियोलर सैक भी पाई जाती है, क्योंकि वो फ्लाइट करती हैं, उड़ती हैं, तो उस समय वो मदद करती है। ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा
होती है, more oxygenation is demanding during to the flighting, and that's to the aves which are a little bit different to the mammals. So that is the here to the there are the three kinds of the circulation along with the single circulation in the mammalian embryo. So that we will discuss to the related topic of the circulation, that is the heart and their circulation and the arteries and the veins and the blood. So thank you.